Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from Analyst Bangalore. Firstly, I will suggest you to see my previous lectures. Please do check my previous lectures if you have not seen yet. Now, in this session, I am going to discuss some of the special contracts. Some of the special contracts that are given under Indian Contract Act, that is from section 124. So these special contracts are indemnity and guarantee, agency, then we have bailment. So these are some of the special contracts. Firstly, we are going to discuss contract of indemnity and contract of guarantee. Is it clear? So what do you mean by the term indemnity? If we see dictionary meaning, अगर हम ये इसका डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं, इट मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस टू पे और पेमेंट फॉर लॉस ऑफ मनी गुड्स एक्सेट्रा. इज इट क्लियर? सो इट मीन्स टू मेक द लॉस गुड and therefore wherever the object of contract is to compensate the party for loss or damage suffered, the contract is contract of indemnity. Is it clear? So indemnity का मतलब क्या है कि indemnify करना, किसी को indemnify करना, that is loss की भरपाई करना, loss की भरपाई करना to make good loss of another. Is it clear? This was a indemnity that is given under section 124 of Indian Contract Act. So there are two parties in this: indemnified or indemnity holder. Indemnified or indemnity holder, and second party is indemnifier. Is it clear? Second part is indemnifier. So who is indemnified? Who is indemnified or indemnity holder? जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, ही इज़ नोन एज इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर. एंड इंडेमनीफायर कौन है? जो प्रॉमिस करता है कि ही इज़ गोइंग टू कंपनसेट दी अदर पर्सन. इज़ इट क्लियर? सो लुक एट सेक्शन 124. ये तो मैंने आपको जस्ट एक डिक्शनरी मीनिंग बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंडेमनिटी. लेकिन आप सेक्शन 124 में क्या है? 124 में भी यही है, टू मेक गुड लॉस ऑफ अनदर. सो वो है कि अगर वो लॉस की भरपाई करेगा, अगर उसको नुकसान हुआ है, जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है उसकी वजह से नुकसान हुआ है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से नुकसान हुआ है, दैट इज़ contract of indemnity. Is it clear? A contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. So if we look at the nature of indemnity contract, अब indemnity contract यही है कि on the happening of some event. तो नेचर क्या इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का? इट इज़ ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. इज इट क्लियर? मैंने बोला कि आई विल कंपनसेट यू if you suffer some loss from such and such person. Then अगर वो उसको कोई लॉस हो रहा है, it is me who is going to compensate the person. Now another thing in this contract of indemnity is that the definition covers indemnity for loss caused by human agency only. इज इट क्लियर? ह्यूमन एजेंसी ओनली. क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. सो इट मीन्स इट डज नॉट डील विद दोज केसेस वेयर इंडेमनिटी अराइजेज फ्रॉम द
accidents, arises from the loss caused by the accident or some any natural event. Is it clear? Now let us talk about insurance contracts. Whether insurance contracts are contract of indemnity. See, now section 124 says, it says a promise to compensate for the loss arising due to human agency. अब जो आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. वाई? क्योंकि जो इंश्योरर है वो क्या प्रॉमिस करता है? ही प्रॉमिसेस टू पे कॉम्पनसेशन इन इवेंट ऑफ लॉस ऑफ बाय फायर, फॉर एग्जांपल बाय फायर. सो सच अगर वो फायर से है, ह्यूमन एजेंसी से तो नहीं है, आग अपने आप लगी है, किसी ह्यूमन की वजह से नुकसान तो नहीं हुआ है, सच कॉन्ट्रैक्ट्स डज नॉट कवर अंडर सेक्शन 125. इस जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं दे विल बी वैलिड ओनली अंडर सेक्शन 31, दैट इज़ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? So now we will discuss section 125 where rights of indemnity holder is given. Now who is indemnity holder? One who is to compensate, he is an indemnity holder. First right that is given under section 125 is वो सारी damages वो claim करेगा. He will claim from the indemnifier which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnity applies. Clear? अगर कोई सूट फाइल करना पड़ा उसमें जितना भी डैमेजेस जितना भी नुकसान हुआ वो पे करेगा, लेगा इंडेमनीफायर से. सेकेंड, वो सारी कॉस्ट लेगा जो उसने उस अपने सूट को केस को लड़ने के लिए खर्च किया है. देन थर्ड राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर इज all the sums which he have paid under the terms of any compromise of any subsidy. Is it clear? तो 3 राइट्स है सारे damages, उस केस में कितना खर्चा आया है, बाकी अगर उसने एंड लास्ट वन इज़ दैट अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया है सूट का तो उसने जो कॉम्प्रोमाइज़ में पे किया है, दैट इज़ द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. So now this was the contract of indemnity. Now we will discuss contract of guarantee. Now what do you mean by the term of guarantee? Now once section 126 defines contract of guarantee. पहले क्या था, ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए था, सिक्योरिटी पर्पस के लिए था, तो ज़्यादातर ये लोन केसेस में ही किया जाता था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. बट आजकल क्या है, इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू लोन केसेस, और भी प्रोमिसेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होता है. जनरली देर आर 2 parties in a contract, but in contract of guarantee there is tri-party contract. It means contract has 3 parties. Who are the 3 parties? Creditor, debtor and surety. Creditor, debtor and surety. Is it clear? Principal debtor, yeah. Now what is the nature of this contract? अब यहाँ पे क्या है, जो पहले लाइबिलिटी की बात डिस्कस कर लेते हैं हम. जो प्रिंसिपल डेटर है उसकी जो लाइबिलिटी होती है दैट इज़ प्राइमरी अनकंडीशनल. इज इट क्लियर? दैट इज़ प्राइमरी अनकंडीशनल. और जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है दैट इज़ सेकेंडरी इन नेचर. सिर्फ सेकेंडरी नहीं आप कह सकते, इवन श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है इट इज़ कॉन्टिंजेंट ऑल्सो, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी कब अराइज होती है? लाइबिलिटी अराइज होती है व्हेन प्रिंसिपल डेटर विल नॉट फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन. इज इट क्लियर? दिस वाज सेक्शन 126 की उसकी डेफिनेशन क्या है. सो इट मीन्स इन शॉर्ट यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी is to discharge the liability of a third person in case of the default of principal debtor.
अब जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है, इट इज़ को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर. Co-extensive means surety is liable to the same extent as that of the principal debtor. Is it clear? Now let us take an example. Suppose minor approaches creditor to borrow the money, और वो माइनर एश्योर कर देता है, प्रॉमिस कर देता है कि उसका लोन वापस देगा. बट क्रेडिटर को पता है कि ये माइनर जो मेरे पास लोन लेने आया है, ही इज़ अ माइनर. सो उसे बोला गया माइनर को, क्रेडिटर ने कहा कि मुझे एक श्योरिटी चाहिए. श्योरिटी को भी पता था, अब जो श्योरिटी आया उसने, इवन ही नोज दैट ही इज़ अ माइनर, बट फिर भी उसके लिए उसने श्योरिटी दे दी. अब क्या है, माइनर ही मेक्स डिफॉल्ट टू पे बैक दी लोन. क्रेडिटर है, ही हैज़ नो रेमेडी अगेंस्ट द माइनर. इज इट क्लियर? ही हैज़ नो रेमेडी अगेंस्ट द minor, we know, because an agreement with minor is void. So he goes to a court to file a case against surety. तो is surety liable in this case? देखो अभी मैंने आपको बताया है कि नो डाउट श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है सेकेंडरी है. देन इवन आई हैव टेल्ड यू द एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज दैट इट इज़ को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. मीन्स श्योरिटी की लाइबिल सेम एक्सटेंट होती है जो कि एक प्रिंसिपल डेटर की होती है. तो अब ये माइनर का केस आया, वो उसको पता है क्रेडिटर को माइनर के अगेंस्ट वो केस फाइल नहीं कर सकता. सो ही हैज़ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द श्योरिटी. सो इज श्योरिटी लाइबल? If we based our answer on section 128 extent of the liability, then surety is not liable, because 128 provides that if principal debtor is not liable, then surety is also not liable. Is it clear? Now look at section 126. वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 3 parties हैं, even contract भी 3 होंगे. How is it possible? 3 इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं? दैट इज़ बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी, एंड थर्ड इज़ बिटवीन श्योरिटी एंड द क्रेडिटर. सी, इफ प्रिंसिपल डेटर है, ही कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे लोन, और श्योरिटी है, श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू पे बैक द लोन इफ़ प्रिंसिपल डेटर फेल्स. सो लाइबिलिटी श्योरिटी की अराइज होती है, कब अराइज होती है? एज सुन एज प्रिंसिपल डेटर फेल्स, एंड वंस लाइबिलिटी of surety starts operative, then he is liable even though principal debtor is not liable. Is it clear? So there are 2 ways, दो व्यूज़ हैं, और कोई इस पॉइंट पे डिसाइडेड केस नहीं है कि अगर माइनर है, माइनर तो उसके लिए श्योरिटी विल बी लाइबल और नॉट. एक कह रहे हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, 128 के कह रहे हैं कि नहीं, वो श्योरिटी इज़ नॉट लाइबल, बट 126 से कि इवन प्रिंसिपल डेटर इज़ नॉट लाइबल, श्योरिटीज लाइबिलिटी इज़ देयर. केस लॉ अभी तक कोई नहीं आया. सो देर इज़ अ स्लाइट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 126 एंड 128. लेकिन जो सेकेंड ओपिनियन है ये ज़्यादा साउंड लग रहा है, सेक्शन 128 वाला. फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ 126 इट अपीयर्स दैट श्योरिटी विल बी लाइबल इफ प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस. इज इट क्लियर? So for the minor, surety will be liable. Is it clear? Now there are 2 kinds of guarantee contract. गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2 तरह की है. फर्स्ट इज सिंगल गारंटी ट्रांजेक्शन, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूइंग गारंटी व्हेन इट एक्सटेंड्स फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन स्प्रेड ओवर टाइम ऑफ टाइम. सिंगल एंड कॉन्टिन्यूस गारंटी, सिंगल गारंटी एंड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. जो सिंगल गारंटी है, ये ट्रांजेक्शन वो वाली ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि श्योरिटी ने एक बार दी है, and that cannot be withdrawn, that cannot be revoked. But जो continuing guarantee है, that can be revoked for future. Is it clear? सिंगल गारंटी नहीं रिवोक की जा सकती, सिर्फ एक ही बार देता है श्योरिटी. और जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है मीन्स फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड दैट कैन बी रिवोक्ड फॉर
future. Now a question arises whether there can be a co-sureties. Means co-surety means more than one surety. Yes, there can be co-sureties, and co-sureties are co-promises with the promisee. तो जो promise है he can enforce it against anyone, and if anyone is held liable, co-surety has a right of contribution. वो अपनी गारंटी को लिमिट कर सकते हैं. Suppose A has borrowed sum of 30,000 from B and he gives surety. B जब surety के लिए बोलते हैं तो वो 3 persons को surety के लिए लेके आते हैं, C, D and E. Is it clear? C, D and E. और वो है कि equally liable होते हैं. Now if A doesn't pays to B 30,000 rupees, now B has option either to enforce an action against all the 3 or any one or any 2. Is it clear? Now suppose B files a case against only one person, that one surety, that is C. Now C can claim 10,000 from B and D. Is it clear? So co-surety has a right to contribution. Is it clear? Now under what circumstances, next question comes, under what circumstances surety is discharged from liability? Surety कब discharge होगा? If you look at your barracks, section 131 to 137 में आपको ये बताया गया है कि surety की कब discharge होती. 131 says when surety discharges in case of continuing guarantee. इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, तो वहाँ पे क्या है आपका कि जो डेथ हो जाती है श्योरिटी की, डेथ ऑफ द श्योरिटी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा उसकी एब्सेंस में क्या है, डेथ होगी श्योरिटी की, ऑब्वियसली फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का क्या है कि वो रिवोक हो जाएगा. नेक्स्ट व्हाट सेक्शन 132 सेज, liability of 2 persons primarily liable not affected by arrangement between them, one shall be surety on others default. So in that it means कि जब 2 persons किसी third person के साथ contract करते हैं, when 2 persons make a contract with a third person and to pay certain liability, सो फिर वो अपने साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर दिस अदर पर्सन विल बी लाइबल फॉर द डिफ़ॉल्ट ऑफ वन पर्सन. इज इट क्लियर? दैट इज़ 132. सो फॉर एग्जांपल ए और बी ने जॉइंट प्रॉमिसरी नोट किया है, जॉइंट और सेवरल प्रॉमिसरी नोट किए हैं सी को. ए बी का श्योरिटी है, ए मेक्स इट इन फैक्ट एज श्योरिटी फॉर बी. सी को भी ये बात पता है. अब फैक्ट है ए टू द नॉलेज ऑफ सी मेड द नोट एज श्योरिटी फॉर बी. इट इज़ नॉट एनी आंसर टू सूट बाय सी अगेंस्ट ए अपॉन दैट नोट. नाउ सेक्शन 133 सेज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज मीन्स कि जो आप में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब उसके अकॉर्डिंग आप नहीं फॉलो कर रहे हो, देयर इज सम चेंजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने अपनी मर्जी से कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दिया, देन श्योरिटी विल नॉट बी लाइबल फॉर दैट. व्हाट 134 सेज, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर. चलिए अब अगर प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया कि वो क्रेडिटर कह रहा है देयर इज़ नो लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, देन श्योरिटी की भी डिस्चार्ज हो जाएगा. 135 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव्स हिम टू और एग्रीज नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर. अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, जिसमें कि क्रेडिटर एक कॉम्पोजिशन कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, और उसे या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रॉमिस कर रहा है टाइम देने के लिए, और ये कह रहा है ही इज़ नॉट गोइंग टू स्यू दी प्रिंसिपल डेटर, तो इससे श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा. हाँ, लेकिन अगर श्योरिटी ने अपनी असेंट दी है जो कि क्रेडिटर ने कहा था, देन ही विल बी लाइबल. 136 श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर. इसमें क्या है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जिसमें प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने टाइम दिया है
किसी थर्ड पर्सन के साथ, एंड देन सच श्योरिटी इज़ नॉट डिस्चार्ज. Is it clear? For example, C, holder of an overdue bill of exchange drawn by A as surety for B and accepted by B. Contract with M to give to B, A is not discharged. Is it clear? Next, 137, creditor's forbearance to sue does not discharge surety. अब ये है कि क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर दिया या कोई और रेमेडी ले ली, इट डजेंट मीन कि वहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया. इज इट क्लियर? So in the similar way, you can say mere not filing a case against a debtor does not discharge the surety, because law of limitation does not destroy the right but only bars the remedy. Is it clear? That was the topic of indemnity contracts and guarantee contracts. Is it clear? Indemnity contract and guarantee contract. Now further topic we will discuss in the next session. Thank you.